Yes, in the first period we discussed about first two analysis. External is always being done by external parties, and that was your bankers, which he was calling lenders, then investors, then government authorities or research persons, researchers, what he says. Then internal analysis is always meant for internal management, so that we can bring the improvements in our future course of action. Then we have horizontal, ये भी indirectly हम लोगों ने कर लिया है. Which analysis was named as horizontal comparative statement when we were preparing, and we were having the 2 or 3 years data simultaneously. That's why this analysis is also named as time series analysis. Time wise है ना, एक साल का पिछले 2 सालों के साथ या पिछले 3 सालों के साथ क्या होता है, कंपैरिजन होता है. What else he is writing about horizontal, let's see. And then we have vertical. And one thing more, if it is named as time series, it is also named as dynamic. As the time gets changed, बार बार हम लोग अलग अलग years ले रहे हैं, अलग अलग years we are taking, so that's why we call it dynamic analysis as well. Yes, as different time periods are to be compared and time period gets changed, इसलिए डायनामिक भी इसका नाम है, टाइम सीरीज एनालिसिस भी इसका नाम है, और सिंपली इट इज नेम्ड एज हॉरिजॉन्टल. पढ़ो जी क्या लिखा. दिस एनालिसिस इज मेड टू रिव्यू एंड एनालाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स. दिस लाइन ही कैन पिक एंड ही कैन आस्क यू नेम दिस एनालिसिस. डिफरेंट इयर्स का डाटा जब आप स्टडी करते हैं, उस एनालिसिस को हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहते हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइम पीरियड हम कंसीडर करते हैं, इसलिए इसे टाइम सीरीज एनालिसिस भी कहते हैं. With the help of this time series analysis, you have an idea about the trend of the items. Which trend it is following? Fluctuating. अगर मैं बोलूं profitability का trend जज किया है and it is going from left to right and increasing, तो इस तरह से ये increasing trend क्या करता है, शो करता है. ये trend analysis के लिए भी क्या होता है, यूज होता है, because you are comparing your current year figures with the last 2 or 3 years figures. It shows the comparison of financial data for several years against a chosen base year. What is the chosen base year? That will be your current year. Like 2021 में मैंने comparison किया 20 और 19 और 18 के साथ, तो पिछले 3 सालों का डाटा लिया और मैंने करंट ईयर जिसे सेलेक्ट किया, उसका कंपैरिजन पिछले सालों के साथ किया जाता है. इसी का रिवर्स है भाई हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल. एंड दिस इज आल्सो नेम्ड एज स्टैटिक एनालिसिस. If that was dynamic, so this is static. Hereby you are taking the data of only 1 year, as we were doing in common size. एक ही साल का डाटा था, लेकिन different items का मैं क्या करती थी, comparison करती थी. So it is not going to be time series analysis, it is static. आप एक ही साल का डाटा एनालिसिस करते हो, but you take the comparison or of different items. Take 1 year, but the items are different. देखो क्या लिखा उसने. This analysis is made to review and analyze the financial statements of 1 year only. ठीक है जी, टैगलाइन पता चल गई. वहां पे क्या था, 2 or more than years, यहाँ पे only 1 year. So that's why it is static. It is cross sectional analysis. What is the meaning of cross sectional analysis? आपकी कंसर्न 4 तरह के प्रोडक्ट बना रही है, जैसे हम लोग डिविजनल स्ट्रक्चर में लिया करते थे बिजनेस स्टडीज में. One is your footwear section and other is jewelry, then we have pharmaceutical and one is footwear. तो 4 सेक्शंस का आपस में कंपैरिजन है, लेकिन साल एक ही है 2021. क्रॉस सेक्शनल, डिफरेंट डिवीजन की परफॉर्मेंस का मतलब, मेरे फुटवेयर सेक्शन ने मेरे को नेट प्रॉफिट कितना दिया, मेरे फार्मास्यूटिकल सेक्शन ने मेरे को नेट प्रॉफिट कितना दिया. लाइक दिस यू विल बी कंपेयरिंग. साल एक ही है, लेकिन डिपार्टमेंट्स क्या हैं, अलग अलग हैं. सो इट इज आल्सो नेम्ड एज क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस. अपनी ही कंपनी के डिफरेंट सेक्शंस और डिपार्टमेंट का आपस में क्या होता है, कंपैरिजन होता है. So that's why this is named as vertical, static or cross sectional analysis. Then here are difference you can read yourself. Turn the page, 2.4 page. Intra firm and inter firm comparison, already told in the first period. Who will explain? Inter firm and intra firm comparison. एक्स लिमिटेड का पिछले 5 सालों का डाटा लिख दिया और उसका कंपैरिजन किया, जैसे टेबल बनाया. कंपनी सेम, ईयर्स आर डिफरेंट. अपनी ही कंपनी के डिफरेंट ईयर्स का क्या किया है, कंपैरेटिव डाटा एनालिसिस किया है.
This analysis we call intra-firm company seen. नीचे एग्जांपल दी, X लिमिटेड का Y लिमिटेड के साथ, Z लिमिटेड के साथ कंपैरिजन हो रहा है. Companies are different. You are comparing yourself with another companies. So that comparison we call inter-firm comparison. क्या दोनों तरह के कंपैरिजन होने चाहिए कि अपना अपने साथ ही होना चाहिए? बिल्कुल ठीक है. सेल्फ एनालिसिस के लिए इंट्रा फर्म कंपैरिजन करो, अपना कंपैरिजन दूसरी कंपनीज के साथ करके यू कैन फाइंड द लूप होल्स इन योर ऑपरेशंस, यू कैन फाइंड आउट द डेफिशिएंसीज इन योर ऑपरेशंस, इवन यू कैन हैव एन आइडिया कि वो कंपनी इतना ज्यादा राइज क्यों कर रही है. You can have certain factors in your mind with the help of which you can bring improvement in your own performance. So both type of comparisons should be there if you really want to rise in the market. उसके बाद अगला टॉपिक डायरेक्टली हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्योंकि 4 छोटे-छोटे पैराग्राफ्स बनाए हैं, you should have an idea. एनालिसिस का मतलब क्या होता है? जैसे हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं उसमें एनालिसिस ही करते हैं. तो कंपनी की परफॉर्मेंस का एनालिसिस कैसे करना है? सबसे पहले डाटा को अरेंज करो. अरेंज का मतलब क्या है? जैसे मैंने सुबह एग्जांपल दी थी कंपैरेटिव, पहले प्रीवियस ईयर का डाटा लिखो, फिर करंट ईयर का लिखो, फिर उसमें एब्सोल्यूट चेंज ढूंढो, फिर परसेंटेज चेंज ढूंढो. पहले डाटा को क्या करो? अरेंज करो. चैट्स में आपको सिखाया हुआ है कलेक्शन ऑफ डाटा इज नथिंग अनलेस एंड अनटिल इट इज नॉट अरेंज्ड इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर. सो सबसे पहले एनालिसिस करने के लिए आपने क्या करना है? पूरे स्कूल के बच्चों की हाइट आपने का डाटा कलेक्ट कर लिया, दैट इज नॉट हैविंग एनी यूज. आप 10th क्लास के बच्चों की हाइट का कंपैरिजन उनके साथ करो, 9th क्लास के बच्चों का, या कैटेगरीज बना लो 9 to 12, ठीक है, 1st to 5th, ठीक. इसी तरह से 6 to 8, इस तरह से कैटेगरीज बनाओगे तो सेम कैडर के बच्चे आ जाएंगे. यू विल बी हैविंग अ कंपैरेटिव स्टडी. तो आपने पहले डाटा को क्या करना है? अरेंज करना है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप. देन सेकंड कंपैरिजन, जैसे मैंने सुबह सिखाया, जब प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का डाटा लिख लिया तो उसका कंपैरिजन किया, परसेंटेज चेंज निकाली, कंपैरिजन करो. आफ्टर कंपेयरिंग इट उसका एनालिसिस करो, मींस स्टडी करो डाटा को. एंड एट द लास्ट वी हैव टू इंटरप्रेट इट. इंटरप्रेट मींस यू हैव टू कंक्लूड what conclusion you are drawing with the help of above study. This is what we call interpretation. So overall 4 steps are there, though directly it is not mentioned in our syllabus. ठीक. Then we have अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, objectives of financial statement analysis. Why should we do such analysis? Why should we do? You tell. पहला comparison, दूसरा to judge the profitability, तीसरा to judge the financial position. When I talk about financial position, I stress upon assets and liabilities. When I stress upon profitability, I stress on statement of P&L. Then I stress on incomes and expenses. जब मैं profitability की बात करूंगी, I will be studying what? Income and expenses. Then I will be comparing this year profit with the last year's profit. ठीक है? So these are the few highlighting purposes for which we go with this analysis. क्या हर कंपनी के लिए अपना एनालिसिस करना जरूरी है? क्या हर कंपनी के लिए अपना एनालिसिस करना जरूरी है? आपकी परफॉर्मेंस के भी तो एनालिसिस होते हैं when we are conducting your exams and we are preparing your report cards. Similarly, company is also preparing its report card different tenure के, different tenures के, so that company can have an idea company कहाँ पे stand कर रही है और कंपनी का गोल क्या था. क्या हम अपने गोल के नजदीक पहुंचे हैं या बहुत दूर हैं? हम लोग चाहते थे कि पिछले साल के कंपैरिजन में 25% प्रॉफिट बढ़ाना है, लेकिन हमारा प्रॉफिट तो फर्स्ट क्वार्टर में सिर्फ 10% ही बढ़ा है. फर्स्ट क्वार्टर में अगर 10% बढ़ा, स्टिल वी हैव 9 months with us to improve. You know, कंपनीज आजकल क्वार्टरली रिपोर्ट बनाती है. अगर साल में एक बार रिपोर्ट बनाए फिर तो बहुत देर हो चुकी होगी, सुधार कर ही नहीं पाएंगे. क्वार्टरली मींस after every 3 months. 4 quarters are there in a year, so after every 3 months company do prepare their statement of P&L to have an idea कि हमारी पोजीशन कहां तक पहुंची है. What next we have to achieve in the next quarters. So for that purpose, analysis is must for every public limited company. I am saying for every public limited company because hereby the money is being borrowed from others. आपका अपना पैसा नहीं है, बाहर वाले लोगों का लगा भाई, उन्हें रिटर्न भी देना है. जब तक आप अपना एनालिसिस ही नहीं करोगे, how can you earn the profit? How can you enhance that profitability level? How can you announce the dividend to your shareholders? How can you pay interest to your lenders? For that, analysis is must. Okay? So let's read the purpose. First, assessing the earning capacity or profitability point explained है, self-explanatory है. अगर analysis नहीं करेंगे, how can we see or say how much profit we are earning? Is there any downfall in the profit if I compare it with the previous year, or my profitability is increasing? How the profitability can be judged? For that, I will be calculating my NP ratio, GP ratio.
why ratio I am using? Because ratio analysis is one of the tool of financial analysis. फर्स्ट पीरियड में करवाया है. डिफरेंट रेशियोज कैलकुलेट करके आप अपनी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन जज कर सकते हैं. इस साल की रेशियोज इस साल निकाल ली, पिछले साल की पहले से ही निकाल के रखी हुई है, दोनों का कंपैरिजन कर लो. यू कैन हैव एन आइडिया इज इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. तो प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन को जज करने के लिए वी डू दिस एनालिसिस. What is the meaning of assessing the managerial efficiency? Read these 4 or 5 lines and make up your mind what he is writing and what he is meant by these lines. Assessing the managerial efficiency. तरीशा पढ़ने को बोला, everybody will read. Everybody will read. And you are going to explain it now. It's simple English. Assessing the managerial efficiency. Read it, everyone. पढ़ लिया? It will not take the whole period. Okay, चलो भवनीत बोलो. रीड करके बोलो, अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो, बोलो. एफिशिएंसी का मतलब है आर वी अचीविंग आवर टारगेट. करवाया हुआ आपको. आर वी प्रोड्यूसिंग द एक्सपेक्टेड रिजल्ट. आर वी हैविंग द कंट्रोल ओवर आवर कॉस्ट. क्या हमारा अपनी कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल है? अगर कॉस्ट लगातार हमारी बढ़ रही है, कहां से पता चलेगा? ऑपरेटिंग रेशियो लगातार बढ़ रही होगी. फॉर दैट पर्पस अगेन यू विल बी यूजिंग रेशियो एनालिसिस. एनालिसिस करने के लिए कुछ टूल्स चाहिए ना, तो अभी तक मैंने करवाया ही एक टूल है रेशियो एनालिसिस. दैट्स व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग अपॉन इट अगेन एंड अगेन. So with the help of ratio analysis, you will be calculating different ratios, which will dictate that are you efficient or not. Efficiency की definition business studies में करी हुई है. When you are able to achieve your target, that is efficiency. When you are able to control your cost, that is efficiency. When you are able to get optimum result with scarce resources, कम resources use करके जब आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा output निकालते हैं, you are efficient. So this is we are going to check. This is we are going to assess. And financial analysis की help से you can have an idea where are you inefficient. उस inefficiency को remove करने के लिए then our management will be making its own policy. Management अपना ही self analysis कर रही है. भाई कहां पे मेरी पॉलिसी सही साबित हुई और कहां पे मेरे को इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और वो कब पता चलेगा? जब आप अपना ही एनालिसिस करोगे, जब आप अपना सेल्फ एनालिसिस करोगे. एंड फॉर दैट सेल्फ एनालिसिस यू आर यूजिंग डिफरेंट टूल्स. देन हु विल डिफाइन द मीनिंग ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी? रेशियो एनालिसिस में करवाया हुआ. सारे चैप्टर इस बुक के लिंक्ड हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी? रेज योर हैंड फॉर इट्स मीनिंग. वन बाय वन. ओके नंदिनी, यू स्पीक. Which financial obligations? बिल्कुल ठीक है. Are you in a position to pay off your short-term obligation well on time? Short-term obligation means क्या आप अपनी current liabilities की payment time पे कर देते हो? Another name of short-term solvency is liquidity. And liquidity position कैसे judge होती थी? Current ratio निकाल लो, quick ratio निकाल लो. So when you are going to analyze, with the help of which you can come to know about your short-term solvency. आपकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कैसी है? मान लो करंट रेशियो का आंसर 0.4:1 आता है. योर लिक्विडिटी पोजीशन इज पुअर बिकॉज वी वांट करंट रेशियो शुड बी 2:1. कुछ ना कुछ तो टूल यूज करोगे. एनालिसिस ऐसे थोड़ा ना हो जाना कुछ लिख लिया तो एनालिसिस हो गया. यू विल बी अप्लाइंग सर्टेन टूल्स एंड देन यू विल बी कंक्लूडिंग. सिमिलरली क्विक रेशियो हम चाहते हैं 1:1 हो, लेकिन आपकी क्विक रेशियो 0.7:1 आ रही है, 0.3:1 आ रही है, बिलो द एक्सपेक्टेशंस, below the satisfactory or ideal ratio, then again you will be saying that liquidity position is poor. In that way you will be making your effort to improve it. What is the meaning of long term solvency? How the long term solvencies can be judged with the help of ratios? How the long term solvency can be judged with the help of ratios? बिल्कुल ठीक. डेट इक्विटी रेशियो 4 रेशियोज हैं हमारे पास. ICR. How ICR can be used to judge the long term solvency? Yes, who will? Interest coverage ratio कैसे मेरी long term solvency को जज करने में मेरी हेल्प करती है? This is one of the ratio under solvency ratios. बिल्कुल ठीक है. हमारे अवेलेबल प्रॉफिट में से कितनी बार हमारा इंटरेस्ट कवर होता है? हायर द रेशियो, बेटर विल बी द सॉल्वेंसी पोजीशन.
if your ICR ratio is 1 time, if your ICR ratio is 1 time, मींस इंटरेस्ट पे करने के बाद कुछ बचना ही नहीं है, जितना प्रॉफिट है वो सारे का सारा इंटरेस्ट की फॉर्म में चला जाना है, तो आगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए क्या बचाओगे? एंड इफ योर ICR कम्स 9 टाइम्स, मतलब आपका प्रॉफिट 9 गुना ज्यादा है इंटरेस्ट के कंपैरिजन में, इंटरेस्ट पे करने के बाद भी 8 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट बच जाएगा, means your solvency position is satisfactory. Any other ratio which help us to judge the solvency position? Total assets to debt, total assets to debt है, total assets to debt है, कौन सी रेशियो है? सेकंड, पहली डेट इक्विटी रेशियो है, दूसरी कौन सी है? टोटल एसेट्स टू डेट, थर्ड कौन सी है? प्रोप्राइटरी। कितना पैसा लगा है मेरे इंटरनल फंड्स का मेरे एसेट्स को स्पॉन्सर करने के लिए, सो दैट इज आल्सो indicator to judge the solvency position of your concern. So is this analysis required? Is this analysis required? Should we know our solvency position or liquidity position? So this is the purpose behind this analysis, with the help of which we can judge our short term and long term solvency. Inter-firm comparison, again self-explanatory. What is the meaning of inter-firm and intra-firm? अपना कंपैरिजन अपने साथ तो करना ही है, अपना दूसरी कंपनीज के साथ भी करना है. Is it required? Is it required? Yes, because ultimately you have to compete in the market with other firms, isn't it? आपने दूसरी कंपनीज के साथ compete करना है, तो उसके at parity आना भी तो जरूरी है, या उनको पीछे छोड़ना भी तो जरूरी है. You should beat them in the market, and that will happen only if you compare yourself with your competitors. So इस एनालिसिस के अंडर हम इंटरफर्म कंपैरिजन भी करते हैं, दैट इज आल्सो आवर पर्पस. फोरकास्टिंग एंड प्रिपेयरिंग बजट्स. बजट्स इज अ टर्म ऑफ योर इकोनॉमिक्स, बट अकाउंट्स में बजट्स का मतलब क्या है? एक्सपेक्टेड इनकम्स एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स. जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे, आप अगले साल का बजट कैसे बनाओगे? एंड बजट इज not only in the form of incomes and expenditure, budget can be for sales also. When you make the expectation of sale for the coming year, तो वो sales budget है. You also prepare cash budget, that is expected receipts and expected payments of cash for the future. आप cost budget भी बनाते हो, that is expected amount to be spent on different items for the coming year. तो different types of budget बनाने के लिए आपको past का डाटा चाहिए, future का budget बनाने के लिए आपको past का डाटा चाहिए. पास्ट का डाटा जानने के लिए यू हैव टू मेक व्हाट? एनालिसिस. तो जब आपने फ्यूचर के बारे में फोरकास्ट करना है, यू नीड टू एनालाइज योर करंट पोजीशन. व्हेनेवर यू वांट टू प्रिपेयर द बजट फॉर द फ्यूचर, यू नीड टू एनालाइज योर करंट पोजीशन. ठीक है, मान लो मैंने इस साल का सेल का बजट देखा, इस साल के सेल के बजट में मेरी एक्सपेक्टेड सेल 50 लाख की थी, लेकिन सेल टोटल 38 लाख की ही हुई. मेरा इस साल का सेल्स बजट था 50 लाख की सेल करना, दैट वाज माय एक्सपेक्टेशन, लेकिन सेल हुई 38 लाख की. 12 लाख का गैप है भाई, ह्यूज गैप. कारण सीधा सा बोल सकते हैं कोविड सिचुएशन के कारण. ठीक है, क्या अगले साल का सेल बजट आप 50 लाख का फिर से बनाओगे? नो, यू विल ब्रिंग अ डाउनफॉल इन इट, क्योंकि आपका पिछले साल का बजट ही अचीव नहीं हुआ था. अगर इस साल 38 लाख हुई है तो 40-42 का बना लेना बस, 50 का फिर से अचीव करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मार्केट में डाउनफॉल आया हो. ठीक है, सो फॉर दैट व्हाट आई यूज द प्रीवियस ईयर डाटा, आई एनालाइज द प्रीवियस ईयर डाटा. सो दैट्स व्हाई एनालिसिस इज मस्ट टू मेक द बजट फॉर द फ्यूचर. एनालिसिस इज मस्ट टू मेक द फोरकास्टिंग फॉर द फ्यूचर. यू नो फोरकास्टिंग, व्हेन वी डिसाइड अबाउट फ्यूचर इन करंट पीरियड. ठीक है, प्लानिंग में करा होगा ना. टेकिंग द डिसीजन फॉर फ्यूचर इन करंट पीरियड मींस, हिंदी और पंजाबी में से बोलते हैं भविष्यवाणी करना. ठीक है, और उस भविष्यवाणी के लिए 100% एक्यूरेसी नहीं रहती, बिकॉज फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टन, बट इवन देन वी हैव टू मेक. सो फोरकास्टिंग के लिए और बजट बनाने के लिए भी फाइनेंशियल एनालिसिस जरूरी है. आगे चलते हैं. एक्सप्लेनेबल एंड अंडरस्टैंडेबल, ऐसे वेग सा हेडिंग बना दिया. कहता फाइनेंशियल एनालिसिस इसलिए करना भी जरूरी है कि मेरी इंटरेस्टेड पार्टीज को समझ आ जाए हमारी पोजीशन, हम कहां पे स्टैंड करते हैं. बिकॉज once you are making your analysis, you will be preparing your annual report, and that annual report so many parties are going to read. उनको आसानी से
और सरल भाषा में हमारी कंपनी की पोजीशन समझ आ जाए, इसलिए भी हम एनालिसिस करते हैं, बिकॉज एनालिसिस इज ऑलवेज बीइंग मेड बाय द मैनेजमेंट, एनालिसिस इज ऑलवेज बीइंग मेड बाय ऑडिटर्स और सीएस. They will be writing their own comments, and by reading that comments you can have an idea कि कंपनी कहां पे स्टैंड करती है. ठीक है. So एक्सप्लेनेबल बनाने के लिए, अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए भी, ताकि दूसरी पार्टीज को हमारे ऊपर भरोसा रहे, हमारी कंपनी की पोजीशन उन तक कम्युनिकेट हो, इसलिए भी हम एनालिसिस करते हैं. नाउ यूसेस और बेनिफिट्स. जो पर्पस है ना उन्हें मोल्ड कर दो तो यूसेस बन जाने चाहिए वैसे, इजंट इट? जो पर्पस है उन्हें थोड़ा सा मोल्ड कर दें तो वही यूसेस या बेनिफिट बन जाएंगे. यूसेस का मतलब क्या? सिग्निफिकेंस. व्हाई शुड वी डू? तो पर्पस का भी तो मतलब यही था. पहला पॉइंट पढ़ो. डू यू अंडरस्टैंड? आर यू गेटिंग द फर्स्ट पॉइंट? ओके, इसने पॉइंट ही अलग से बनाए. चलो जी, ठीक है. आई हैव टू. सिक्योरिटीज एनालिसिस. 2 लाइनें मैं बोलूंगी, फिर आप इसे रिलेट करके मेरे को बताओगे. This analysis is being made by shareholders in order to know their security margin in the company. ये एनालिसिस हमारे शेयर होल्डर्स करेंगे या इन्वेस्टर्स करेंगे, ये जानने के लिए कि उनके शेयर का प्राइस मार्केट में कैसा चल रहा है, कंपनी उनका डिविडेंड दे पाएगी कि नहीं, आर दे सिक्योर इन द कंपनी और नॉट. इज दिस एनालिसिस रिक्वायर्ड बाय देम? अगर आपके पास इस कंपनी के शेयर होते तो आप ये एनालिसिस करते? So this analysis is from the viewpoint of shareholders or investors. Who wants to buy the share वो भी ये एनालिसिस करेंगे, जिनके पास ऑलरेडी शेयर है वो भी एनालिसिस करेंगे, क्योंकि वो देखना चाहते हैं हमारे शेयर की वैल्यू कितनी है. वो ये देखना चाहते हैं कि कंपनी डिविडेंड पे करने की सिचुएशन में है कि नहीं, कहीं हमारा पैसा डूबने वाला तो नहीं है. So this analysis is one of the uses of your financial analysis, which is not being conducted by company. This is being conducted by either the prospective investors or by the shareholders. Are you getting what I told you? पढ़ो उसने क्या लिखा. उसने थोड़ी सी वर्डिंग घुमा के लिखी है. It is a process by which investor comes to know whether the firm is fulfilling his expectation. किसी एक इन्वेस्टर की किसी एक कंपनी से क्या एक्सपेक्टेशन है? किसी एक इन्वेस्टर की किसी एक कंपनी से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? टाइम पे डिविडेंड देना, टाइम पे रिटर्न अनाउंस करना. तो ये एनालिसिस कौन कर रहा है? इन्वेस्टर कर रहा है, ये जानने के लिए कि कंपनी उसकी एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतर रही है कि नहीं. क्या वो टाइम पे डिविडेंड पे कर देगी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन? अगर मैंने 5 लाख के शेयर खरीदे हैं तो आज उसकी वैल्यू कितनी है? अगर आज उसकी वैल्यू 4 लाख हो गई है 5 साल पहले के खरीदे, इट मींस कि माय कैपिटल इज बीइंग डेप्रिशिएटेड. लेकिन अगर मैंने 5 लाख के शेयर खरीदे हैं, आज उसकी वैल्यू 8 लाख हो गई है, माय कैपिटल गॉट एप्रिशिएटेड. पड़े पड़े मेरे शेयर की वैल्यू का बढ़ना, ये जानने के लिए भी कि कैपिटल में कितनी एप्रिसिएशन हुई है, वी मेक दिस टाइप ऑफ एनालिसिस. देन क्रेडिट एनालिसिस. हु विल डू दिस एनालिसिस? रीड 3 लाइंस जो लिखी हैं उसमें. हु विल डू दिस एनालिसिस? इसने कुछ और लिखा है. Such analysis is useful when a firm offers credit. Offers credit means किसी कस्टमर को उधार पे सामान बेचता. जब एक कंपनी किसी एक नए कस्टमर को उधार पे सामान बेचती है या डीलर को सामान देती है, the manager of the firm would like to know whether to allow or extend credit to them or not. किसी एक कस्टमर को उधार पे सामान बेचने से पहले आप रैशनली क्या चेक करेंगे? Had you been the manager of the company before allowing credit of ₹1 crore to a new dealer, what will you check? What will you check? किसी एक नए कस्टमर या डीलर को 1 करोड़ का सामान बेचने से पहले आप क्या चेक करेंगे? His credit worthiness, his ability to pay back the money to you, that is credit worthiness. तो उसके क्या बोलेंगे? क्रेडिट एनालिसिस. So this analysis is being made by company. किसी भी नए कस्टमर को, पुराने कस्टमर पे आपको भरोसा है, यकीन है, किसी भी नए कस्टमर को पहली बार उधार पे सामान बेचने से पहले जब आप उसकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक करते हैं, आप उसकी सॉल्वेंसी पोजीशन चेक करते हैं, दैट इज नेम्ड एज क्रेडिट एनालिसिस. और ऐसा होगा, ठीक है, अदरवाइज ढेरों बैड डेट्स हो जाएंगे और कंपनी वैसे ही इनसॉल्वेंट हो जाएगी, वाइंड अप हो जाएगी. तो हमेशा जब आप करोड़ों की डील कर रहे हैं, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस तो चेक करिए, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड तो चेक करिए. दिस इज व्हाट वी कॉल क्रेडिट एनालिसिस. हु मेक इट? हु डू इट? कंपनी. आगे चलते हैं. डेट एनालिसिस. डेट एनालिसिस.
This is basically being done by the bankers to know the borrowing capacity of the company. अपने borrowers को लोन देने से पहले उनकी डेट रेजिंग कैपेसिटी को जज करना है. कोई भी बैंक मेरी कंपनी को लोन देने से पहले मेरी लायबिलिटी जरूर देखेगा. क्यों और कैसे? कोई भी बैंक मेरी कंपनी को लोन देने से पहले मेरी पुरानी वाली लायबिलिटी जरूर देखेगा. क्यों और कैसे? बोलो. अगर ऑलरेडी मेरी डेट इक्विटी रेशियो 2:1 है, क्या कोई बैंक मेरे को लोन देगा? ऑलरेडी मेरे डेट इक्विटी के कंपैरिजन में डबल है. कोई भी बैंक मेरे को नया लोन देने को तैयार नहीं होगा जब तक ये मेरे पुराने लोन रीपे नहीं होते. अब कभी भी बैंक को when you will become some professionals or salaried people, whenever you will go to the bank to apply for the loan, they will ask कहीं पुराना लोन तो नहीं चल रहा कोई. अगर पुराना लोन चल रहा है तो आपका क्रेडिट स्कोर कम हो जाता है. So this analysis is being made by lenders. Before providing loan to any company, they just analyze the debt raising capacity of the company. Dividend decision. Who will make this decision? Company. So financial analysis का ये भी uses है. जब आपने अपनी कंपनी का प्रॉफिट चेक कर लिया और निकाल लिया, अब आप ये डिसाइड करोगे कितना प्रॉफिट अपने पास रखूं और कितना शेयर होल्डर्स में डिवाइड करूं. For example, this year you earned 50 lakh profit. You decided इसका 30% में डिविडेंड अनाउंस करूं. मींस 15 लाख का आपने डिविडेंड अनाउंस कर देना, बाकी 70% अपने पास रखना है फॉर फ्यूचर रिसर्च एंड डेवलपमेंट. कभी भी सारा प्रॉफिट डिविडेंड की फॉर्म में नहीं दिया जाता. आपने अगले साल का काम भी तो चलाना. ठीक है. सो डिविडेंड डिसीजन लेने के लिए भी फाइनेंशियल एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट. जनरल बिजनेस एनालिसिस, 2 लाइनें लिखी है, पढ़ो क्या. जनरल बिजनेस एनालिसिस. एक वर्ड लिखा है की प्रॉफिट ड्राइवर्स. यू विल मेक एन एनालिसिस किन फील्ड से आपको प्रॉफिट मिल रहा है. की प्रॉफिट ड्राइवर्स, विच आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, विच आर द इंपॉर्टेंट डिविजन्स ऑफ माय कंपनी जो मेरे को प्रॉफिट दे रही हैं. और बिजनेस रिस्क का आप एनालिसिस करोगे जहां पे आपको लगता है कि हमें लॉसेस होने की क्या है पॉसिबिलिटीज है. सो यू विल बी एनालाइजिंग योर की प्रॉफिट ड्राइवर्स as well as risk associated factors so that you can take timely decision. उन रिस्क को कवर करने के लिए आप टाइमली डिसीजन लो और की प्रॉफिट फैक्टर्स को आप और ज्यादा एनहांस करो. So such type of analysis is also helpful for our business, for our company's upliftment. So that is enough for today. बाकी continue करेंगे on Monday. Now is your test.